Hello friends, as we all know, M. Lakshmikant book is very important from both prelims and mains perspective. But problem lies in the fact that the M. Lakshmikant book is so bulky, so it's very hard, tough for the aspirants to revise that book multiple times. Okay, so what I have done actually in this way, I have prepared my own short notes. Okay, that is they are mix of both of my own notes. Like I have followed one teacher. Okay, and M. Lakshmikant. I have read also Lakshmikant multiple times, and I have prepared own short notes. Okay, so with the help of those short notes, I think you can revise multiple times with the watching the video, 2 to 3 times if you watch the video. And we will start with very basics. Though Lakshmikant book is so religious books, it's like very important, as we know. It's very respectable, right? But the thing is this, the book is not for beginners. Actually, you have to make firstly the base. If you have good foundation, right, then only you can easily read, right? So what we are going to do, in this series, we are going to start with the basic, then we will go to the advanced level. So until like till the last lecture, you will be in the such a situation. You will be able to solve both prelims questions of all the PYQs and mains PYQs as well. So, okay, so I'm very much sure about it. So let's start. And today we are going to start with very basics. Though in the 3 previous lectures of Indian polity, what we have discussed, right, that is not like basic level though. But yeah, today what I thought ki, there might be some beginners as well who are not having any idea how to prepare Indian polity, right, and constitution. So the this paper belongs to GS2, right? So what we are going to do today, we will take a basic idea how India is run, what is the syllabus of Indian polity, in the UPSC, right? Okay, so these are the basic ideas, and as we all know, in the UPSC prelims, every year, 15 to 20 questions are being asked every year. So you can, guess the idea. You can, have an idea about how much importance the UPSC gives to the polity part, right? So yeah, without wasting any time, okay, you just follow this series, and one by one, we will bring all the lectures. And I think in very few days, like around in 1 month, we are going to finish this. Okay, so yeah, this polity part. Okay, so just watch these videos multiple times, 1 to 3 times. You watch and you will try to solve those PYQs. At the last, we also solve all the PYQs from 2014. Okay, so without any wasting time, so let's start one by one. Okay, so guys, we all must know कि पॉलिटी इंडियन पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट है वो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पार्ट है और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये आइडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स. ओके, दोस हु हैव लिटिल बिट आइडिया, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक लिटिल बिट लाइक टाइम, सो दे मस्ट बी हैविंग आइडिया. बट आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स. तो गाइस, जिस जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो जीएस2 पार्ट का एक्चुअली जीएस2 में आता है. ठीक है, ठीक है, आपको याद ये रखना है. तो देखो, जीएस2 में क्या क्या आता है आपको याद रखना है. इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आता है. ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस आता है. ठीक है, उसके बाद आईआर आता है. दिस आर द मेजर सेक्शंस. ओके, सो आप अगर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो जीएस2 में, ठीक है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि you will like around 70% of your job is done. Okay, and more importantly, thing is this, UPSC में देखो at least 15 questions every year, max 15 20 questions are being asked every year. ठीक है, तो आप अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो एक in a one way you are preparing for both actually, and you are securing your seat at least for the prelims, for the mains writing, right? So yeah, तो एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर आज पूछे जाते हैं प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में. और मेंस में इसका वेटेज अराउंड 80 to 90 क्वेश्चंस है. ठीक है, मतलब मार्क्स का है, क्वेश्चंस ऑब्वियसली वो डिपेंड करते हैं. तो हाँ, 80 to 90 मार्क्स की क्वेश्चंस पॉलिटी सेक्शन से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल like firstly look at the syllabus, कि what is the syllabus that has been given by the UPSC to us. Okay, so without wasting time, let's start. ठीक है, देखो सिलेबस का फर्स्ट जो जीएस2 पेपर का सबसे जो पॉलिटी सेक्शन का ये है, फर्स्ट जो पॉइंट वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको बताना है. देखो उसके बारे में क्या क्या करना है, एक तो पता करना आपको हिस्टोरिकल जो अंडर मीनिंग्स है, मतलब इसका हिस्टोरिकल कैसे, मतलब इसका चला, मतलब ये इस तरीके इसका बना कैसे, इसका जो फाउंडेशन लास्ट में बना उसका प्रोसेस क्या था. ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन का मतलब होता है कि लाइक ये जब ब्रिटिश आए थे उन सबसे, तो उस टाइम का जो भी सारे ब्रिटिश एक्ट थे कैसे धीरे धीरे अल्टीमेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म लिया. उसके बाद इसके फीचर्स क्या है. फीचर्स ऑब्वियसली आप सारे याद नहीं रख सकते, बट या मेजर आपको फीचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, उसके अपन वन बाय डिस्कस करेंगे. उसके बाद बोले अमेंडमेंट्स. ठीक है, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज लाते हो. ठीक है, जैसे कोई प्रोविजन ऑलरेडी है देयर बट यू वांट टू चेंज अकॉर्डिंग द सिचुएशन ऑफ द टुडे, राइट, और आप कुछ नए प्रोविजन ऐड करना चाहते हो. ठीक है, ठीक है, तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं. और आपको कुछ मेजर अमेंडमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंट प्रोविजंस. ठीक है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेंथ इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आपको पता होनी चाहिए. हमने कल जो लेक्चर था उसमें हमने जो आई थिंक सैलरी फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथ इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. तो इसके सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ही आप याद रख सकते हो. ठीक है, तो लाइक देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स हु गो फॉर मार्किंग अप ऑल द सेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन. दैट्स इज वेरी
hard firstly, secondly it's the input output ratio is very like it's very low, right? As simple as that. तो आपको सिग्निफिकेंट प्रोविजन याद रखने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं इसमें। मेजर बेस प्रोविजन हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे सब याद होता जाएगा, तो आप अपने मतलब वो मत करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा कि याद कैसे होगा वगैरह, धीरे धीरे सब कुछ याद होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कौन से एलिमेंट्स, ऐसे कौन से जो चीजें हैं जिसे आप मतलब चेंज नहीं कर सकते, इवन पार्लियामेंट विद अमेंडमेंट कांट ब्रिंग चेंज फॉर दोस एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसको अपन पढ़ेंगे केस भारतीय वर्ग केस, आगे जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर अपन अच्छे से डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट टॉपिक जो है टॉपिक से फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। देखो आपको फंक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों यूनियन और स्टेट्स की, यूनियन मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्टेट्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फंक्शंस होंगे, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इश्यूज एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure। देखो ये है ना, every year questions are being asked from here because reason being this कि federal structure like दो no word has been mentioned in the constitution, हमारा जो वो है क्वाजी फेडरल, जैसे केसी वेयर ने कहा कि इंडियन मॉडल ऑफ वो क्या है, क्वाजी फेडरल है, ठीक है। तो जो भी प्रेजेंट जो भी मॉडल है उसमें अगर कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जिसे हमें डिस्कस करना है, जैसे रेगुलर वाटर शेयरिंग होता है, जैसे लाइक जैसे इंपोर्टेंट अगर आप जैसे सब्जेक्ट्स को अगर बाई चांस सेंटर अपने लिस्ट में ट्रांसफर कर ले, स्टेट लिस्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट है, तो उससे क्या होगा, चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। या गवर्नर का जो रोल है, ठीक है, गवर्नर आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द सेंटर, ठीक है, एंड दो दे आर हेड ऑफ द स्टेट कंसर्न, राइट। तो उस उनके उनके रोल की क्या बात है। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूल है जिसे बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, उसका भी काफी वो चीज है, ठीक है। तो उसके अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फेडरल स्ट्रक्चर के कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक है। उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देने। देखो बात यह है कि डिवोल्यूशन का पावर का मतलब होता है, जैसे सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ये देखा कि जो इनिशियली में क्या था, गांधी जी का ये उनका ये दिमाग में था कि पंचायती राज को हमें ज्यादा पावर देना है, उनका बॉटम टॉप अप्रोच था, ठीक है, कि पंचायती राज को ज्यादा पावर देंगे, फिर धीरे धीरे स्टेट्स को, फिर यूनियन लेवल पे, सिंपल एज दैट। तो बट Ambedkar was thinking in some Dr. Ambedkar was thinking in something different, right? Because he has experienced all this, untouchability, all this exploitation, right? Torture from, upper caste people, right? So उन्होंने कहा कि अगर मैं इनके हाथों में दे दूं, ठीक है, अगर हम इनके हाथों में अपन पावर दे देते हैं गांव वालों के हाथों में, विलेज के लेवल पे, तो अगेन वही दलित्स की जो बैकवर्ड कास्ट जो है, ठीक है, जो लोअर कास्ट है, उनका क्या होगा, सो कॉल्ड लोअर कास्ट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम बोलने के लिए बोलते हैं, बट ठीक है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट उनको और टॉर्चर ज्यादा करेंगे हाई अपर कास्ट वाले। तो उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने इसको डीपीएसपी में डाल दिया। बट जब जो आपके क्या बोलते हैं डॉक्टर नरसिम्हा राव जब गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअली में वो अमेंडमेंट लेके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्वेश्चन अमेंडमेंट लेके 1992 में, सॉरी, सो अमेंडमेंट लेके आई, ठीक है। और उन्होंने जो पंचायती राज है और म्युनिसिपैलिटीज जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट प्लेस दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, तो उनके देखो उसके बारे में ये डिविजन पावर कैसे हुई, स्टेट्स उनको कितनी पावर मिली है, ठीक है, और उनका फाइनेंस, उनका जो फंडिंग है वो क्या है, ठीक है, लोकल बॉडीज का, उसके चैलेंज कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ के, और ये मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एंड फेडरल स्ट्रक्चर के चैलेंजेस है, ठीक है। यूपीएससी का फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, और डिस्प्यूट रेडिसल मैकेनिज्म एंड देखो देखो सिंपल सी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, सेकंड है लेजिस्लेटिव, थर्ड है जुडिशरी। तो देखो एग्जीक्यूटिव को हम क्या बोलते हैं, देखो प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव मतलब विच जो लॉज को अप्लाई कर इंप्लीमेंट करती है, सिंपली, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। उसके बाद है और एग्जीक्यूटिव जिसे सॉरी जो लेजिस्लेटिव थी, जैसे हमारी करंटली इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट थी हमारा, यूएस में क्या है, यूएस कांग्रेस है। तो लेजिस्लेशन मतलब जो लॉज बनाती है, ठीक है, सिंपल, राइट। तो और जुडिशरी जो उसके बेस पे डिसाइड करती है कि लोगों को जस्टिस कैसे देना है, ठीक है, कोई लॉ सही है नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है ना, ठीक है। तो वो जो भी सारे चीजें तो सिटीजन्स के राइट्स की एडवोकेट करती है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन जो जुडिशरी होती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में सेपरेशन, उनकी पावर्स क्या है, उनका सेपरेशन कैसे है, ठीक है, उसके बारे में अपने पढ़ना है। उसके बाद डिस्प्यूट रेडिसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशन, डिस्प्यूट को रेडिस करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हमारे पास है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, जैसे अभी लोक अदालत वगैरह है, ठीक है, ठीक है, उनकी बात करेंगे अपन। ट्रिब्यूनल्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर पर्पस, उनकी भी अपनी को स्टडी करेंगे, जो आर्टिकल 329 एंड 329A में आते हैं, ठीक है, 329A 329B में आते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल A में आते हैं, और जो अदर पर्पस के लिए आते हैं वो क्या है, B में आते हैं। तो उसको भी अपन, और इंटरस्टेट जो रिवल जो डिस्प्यूट काउंसिल्स होती हैं, मतलब उनके लिए अथॉरिटी जो बनती है, ठीक है, उन सबका अपन को स्टडी करना है, ठीक है।
एनजीटी वगैरह है, ठीक है, अपन धीरे से सब पढ़ेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कोस्टल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। जैसे मैंने कल जैसे सेलिएंट फीचर का हमने जो चैप्टर पढ़ा था लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि मैंने बताया था इस टॉपिक के बारे में कि आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि इंडिया के अलावा इंडिया की कौन सी स्कीम आपको पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद आप अदर कंट्रीज जो मेजर कंट्रीज, नॉट ऑल कंट्रीज बट मेजर कंट्रीज को आपको पता हो, जैसे यूएसए, जैसे यूके, ये एक बड़ी सिमिलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और जापान में, ठीक है। तो उनका मेरे को पता होना चाहिए कि भाई उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो इंडिया से कैसे डिफर करता है, ये सिंपल इज दैट, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कंपैरिजन आपको अदर कंट्रीज के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को से कंपेयर करना भी सीखना होगा, उनके आइडिया आपको होना चाहिए, बेसिक आइडिया की जैसे यूएसए में कैसे सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे है, ठीक है, यूके में कैसे है, ठीक है, फ्रांस में कैसे है, या जापान में कैसे है, चाइना में क्या है, ठीक है। तो बेसिक लेवल का आइडिया, नॉट बट एक्सपर्ट लेवल का, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो देखो पार्लियामेंट मैंने बोला, यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, यूनियन सॉरी स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली 6 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, अदर स्टेट्स में नहीं है। तो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट लेजिस्लेचर बोल देते हैं, जहाँ स्टेट के लिए लॉ बनते हैं, सिंपल इज दैट, राइट। तो उसका क्या है, देखो क्या उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, जो भी प्रोसेस होते हैं, जो सेशन वगैरह होते हैं उनकी। उसके बाद कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसमें बिजनेस कैसे चलता है उसमें। उसके बाद पावर्स क्या है उसकी, ठीक है, प्रिविलेजेस, ठीक है, पावर्स और प्रिविलेजेस क्या, प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट्स उनको मिलते हैं, ठीक है, पावर्स उनके क्या है। उसके बाद इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, ठीक है। अब जैसे क्या होता है आजकल आपको अगर पता हो, मतलब ठीक पास्ट फ्यू इयर्स में क्या हो रहा है, थोड़ा पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। रीजन बीइंग कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है और दो अपोजिशन पार्टीज है, उनके बीच बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव वो नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब ऑपोजिशन अपना मतलब फेवर अपना जो पक्ष रखती है, उसके बाद क्या होता है रूलिंग पार्टी उसका बाइकआउट करेगी, और जब रूलिंग पार्टी अपना अपनी चीज रखेगी तो ऑपोजिशन उसका बाइकआउट करेगी। उससे क्या प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टिव जो कोऑपरेशन होता है वो लेकिंग हो रहा है। तो उसकी बात हो रही है कि देखो इन सब चीजों में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी क्यों घट रही है, स्ट्रक्चर कैसे, स्पीकर का रोल क्या है, यहाँ पे आपको सब पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। स्पीकर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, उससे नॉन पार्टीसन होना, नॉन बाइस्ड होना, अनबाइस्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और अपने ये भी पता करना पड़ेगा कि जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एमएलए या एमपीज होते हैं, उनका जो रोल है, उनके प्रिविलेजेस कितने मायने रखते हैं, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से इश्यूज आते हैं हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे इन टाइम्स टू कम, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चर, टॉपिक है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या स्ट्रक्चर, वो अगेन क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट वगैरह होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या सिस्टम है सारा। उसके बाद फंक्शन, उनकी फंक्शन कैसे करता है वो सब कुछ, ठीक है, उसका सारा प्रोसीजर क्या है। एग्जीक्यूटिव मैंने बोला पहले ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, होता है एग्जीक्यूटिव, होता है लेजिस्लेचर, होता है जुडिशरी, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर करना पढ़ लिया हमने, टॉपिक इसमें दे रखा है। सेकंड एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज को इंप्लीमेंट करती है, जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट जिसके पार्ट है, प्रेसिडेंट जिसके पार्ट है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब टोटल कितने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक तो ये हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इसे यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और प्लस ऑफिसर जो होते हैं परमानेंट ऑफिसर, जैसे आईएएस वगैरह, सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, वो असिस्ट द मिनिस्टर्स इन द डे टू डे वर्क, राइट। तो दे आर आल्सो कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी को जैसे गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही है जो लास्ट जो मतलब सिटीजंस का जो जस्टिस देने वाली, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज फंक्शन को हमें देखना, जुडिशरी का कैसे अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या है, मिनिस्टर्स का कैसे होता है अपॉइंटमेंट सिस्टम, ठीक है, उनको कौन कौन से पावर्स मिलती हैं, ठीक है, और सब कुछ। जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो उसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे, उनको इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए क्या क्या चीजें की गई। उसके बाद को बोले मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही, हम सुनते ही रहते हैं न्यूज वगैरह में, बट बिगिनर के लिए होता है कि भाई क्या होता है डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज वगैरह डिफरेंस होता है। मिनिस्ट्रीज देखो मेजरली क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि जो बिग जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, होम, ठीक है, होम अफेयर्स होते हैं, तो उनके लिए मिनिस्ट्री बड़ी होती है। और डिपार्टमेंट्स भी दो टाइप होते हैं, तो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, अटैच्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अपन इसका अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, काफी टेक्निकल हो जाएगा अभी आपके लिए ऑब्वियसली, तो उनका आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स का भी आपको स्टडी करना। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, कुछ लोग जैसे सेम ऑब्जेक्टिव लेके, ठीक है, जैसे आप सपोज करो पेपर लीक हो रहा है सब कुछ, ठीक है, अभी करंटली ऐसा हो रहा है ऑब्वियसली। तो अपन सपोज करो सभी स्टूडेंट लोग क्या करें, पेपर लीक के लिए एक प्रेस ग्रुप बना ले कि हम गवर्नमेंट को मतलब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे कि ब्रिंग लाइक ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट न्यू लॉज राइट अबाउट दिस, बट या सपोज एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि करंट में चल रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज करो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रेशर ग्रुप बना लिया, सेम ऑब्जेक्टिव हमारे के पेपर लीक रुकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बाई चांस हो गया तो उससे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको। सेकेंडली कि एग्जाम्स स्मूथली कंडक्ट हो, रेगुलरली कंडक्ट हो, वो सब कुछ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है, तुम सभी आए, गवर्नमेंट प्रेशर डाला तो इसे प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे फार्मर्स का भी होता है,
देखो बहुत सारे जैसे जैसे अपन बोलते हैं बिजनेस ग्रुप उनका भी होता है, एडवोकेट्स का होता है, ठीक है, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में होते हैं, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, ठीक है। देखो आपको याद ही रखना है, फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब होता है कुछ जो फॉर्मल होती है, जो मतलब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। इनफॉर्मल देखो जैसे एनजीओ वगैरह बाई चांस को रजिस्टर्ड नहीं हुआ, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो लेवल पे होते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनका, इनका फॉर्मल नहीं होता सिस्टम, बट तो उनको भी, उनके कौन कौन से होते हैं, उनका रोल क्या पॉलिटी में, वो उनको पॉलिटी में क्या रोल, ठीक है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद है कि सैलेंट, नेक्स्ट टॉपिक सैलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि सैलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एक दो होते हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो 1950 तक वोटर जो वगैरह होते हैं उनके राइट्स वगैरह, उनकी जो एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, सब कुछ उनका टर्मिनेशन वोटिंग राइट का कैसे होता है सब कुछ। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हु आर टू कंटेस्ट द इलेक्शन, राइट, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, लोकसभा हो गया, या पंचायत म्युनिसिपैलिटी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उनके बारे में डिटेल में इन्होंने दे रखा है कि कैसे होता है एलिजिबिलिटी, उनके अगर करप्शन के चार्ज हैं तो उनका मतलब क्या होगा, इसलिए क्या होगा, इसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनकी मेंबरशिप वगैरह, मतलब उनके इलेक्शन लड़ने की चीज को लेकर, ठीक है, वो सब कुछ। उसके अपन सैलरी फीचर्स देखेंगे टाइम्स टू कम। उसके बाद अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। देखो देखो अपॉइंटमेंट इन द सेंस, देखो जैसे यूपीएससी है, ठीक है, ये कौन सी हमने देखा था, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, यूपीएससी हो गया, एसपीएससी हो गया, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, टीसीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केग हो गया। तो ये जब इन सब का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, और जो नेशनल कमीशन होते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनमें, ठीक है, ये सब कुछ। तो उनमें अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उन पोस्ट पे उसकी पावर्स क्या होती है, ठीक है, यूपीएससी की क्या पावर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या पावर है, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो अपन सबका फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 जो दे रखा है उसमें उनकी क्या रोल है, ठीक है, जो भी है। तो केक का क्या रोल है, उन सबको हम स्टडी करना धीरे धीरे, ठीक है, वन बाय वन। उसके बाद है नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, अभी इज ओनली पॉलिटी, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। देखो आपको ये पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो होती है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ठीक है, सिंपल, आपको याद रखना है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है, स्टैट्यूटरी वर्ड बना है स्टेट से, स्टैट्यू, स्टेट मतलब होता है लॉ, लॉ, ठीक है, कि कोई बॉडी अगर अपनी पावर अगर किसी लॉ से ले रही है, जैसे एनजीटी हो गया, ठीक है, जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गया, ठीक है, ये सब कुछ है। तो उनको क्या बोलते हैं, बेसिकली उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेशन करती है, जैसे एनजीटी एक काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, सिंपल, राइट। और वो तो क्या मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बेसिकली आपको अंडरस्टैंड ये करना है जो भी रेगुलेट कर सकती है किस चीजों को, ठीक है। तो सेबी वगैरह हो गया, ठीक है, सेबी क्या है ना, तो सेबी भी क्या है, एक तरह से स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं उनको क्या करती है, शेयर्स स्टॉक्स होते हैं उनको रेगुलेट वगैरह करती है उन पे अपना, ठीक है। उसके बाद क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है जिनके पास मतलब हाफ ऑफ द पावर्स होती है एक तरह से जुडिशरी, जैसे ट्रिब्यूनल्स हो गया कोई, ठीक है, अरेस्ट वारंट किसने इशू कर दिया, ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। तो वो सब जो चीजें होती हैं उनको क्वासी जुडिशियल बोलते हैं, सिंपल। सो गाइस हमने देखो सिलेबस का तो हमने आज आइडिया कर लिया कि भाई सिलेबस पॉलिटिकल सिलेबस क्या होता है, गेट द आइडिया, राइट। अब हम धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, जो भी होते हैं सारे बेसिक अपन देखेंगे कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चलता कैसे एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिलेबस हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको बार बार देखिए, सिलेबस को एकदम मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखना सिलेबस, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए फिंगर से, ठीक है। क्योंकि इससे इजी होता है, आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया, और आपको आइडिया भी रहेगा, ठीक है। आप न्यूज पेपर वगैरह पढ़ रहे, करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये टॉपिक यूपीएससी से रिलेवेंट है या नहीं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लाइक ये स्टार्ट करते हैं, बेसिक बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। डेमोक्रेसी का जो जो स्टैंडर्ड जो दिस डेफिनेशन है, दिस वो वेरी पॉपुलर बाय द गिवन बाय द अब्राहम लिंकन हु इज फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उन्होंने दी थी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, द रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन, कोई लोकतंत्र या डेमोक्रेसी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो देखो डेमोक्रेसी की तीन चीजें होती है, डेमोक्रेसी में जो देखो तीन जो फंक्शंस होते हैं, अगर वो तीनों फंक्शंस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनकी पावर है ना सेंट्रलाइज नहीं होती है, वो तीन ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखो लॉ मेकिंग का जो काम होता है, डेमोक्रेसी कोई भी डेमोक्रेसी होती है ना वर्ल्ड की, किसी भी डेमोक्रेटिक चीज देख लो आप, कहीं पे भी कंट्री हो, कहीं इस लाइक माइक्रो लेवल पे मैक्रो लेवल पे कहीं पे भी जाओ, ठीक है, विलेज लेवल पे जाओ या कंट्री लेवल पे जाओ, कहीं पे भी वर्ल्ड लेवल पे, तो लॉ मेकिंग क्या होगी, एक तो लॉ मेकिंग होता है, एक होता है लॉ एग्जीक्यूशन। लॉ एग्जीक्यूशन मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करना, आपने लॉ बना दिया उसको भी आप इन्फोर्स तो कराना पड़ेगा ना, जैसे आपने ट्रैफिक रूल बना दिया, ठीक है, बना दी कि ये चीज होनी चाहिए, अगर आप इसको रेड लाइट को इस टाइम पे करो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको
आप आपने क्या किया, ट्रैफिक पुलिस को वहां पे स्टैंड करवाया, जो भी है। तो ये क्या होगा एक तरह से, अगर आपने उन्होंने वो किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसे आप पनिश करोगे, राइट, उसके लिए जो भी है, जो भी चालान वगैरह कटेगा, राइट, सिंपल। तो वो एक तरह से क्या, एजुकेशन हो गया। उसके बाद जस्टिस। सपोज किसी बंदे ने ट्रैफिक लाइट क्रॉस नहीं की, तो एक बोल रहा है कि नहीं की और एक बोल रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला है बोल रहा है कि किए, तो अब दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया, तो इसका जस्टिस कौन करेगा, ठीक है, ये जुडिशरी करेगी। लॉ मेकिंग में कुछ दिक्कत होगी तो जस्टिस भी चाहिए अपने को। तो ये तीनों जो फंक्शंस होते हैं, लॉ मेकिंग के, लॉ एग्जीक्यूशन या लॉ इम्प्लीमेंटेशन के और जस्टिस के, अगर ये तीनों फंक्शंस अलग अलग बॉडीज में हों तो उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। जबकि अगर ऐसा ना हो, अगर लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन और जस्टिस तीनों किसी एक ही बॉडी के द्वारा दिया जाए, ठीक है, मतलब एक पर्सन या एक बॉडी के थ्रू दिया जाए, तो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, जिसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ठीक है, ऑटोक्रेसी, मतलब वो डेमोक्रेसी के, और डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग होता है कि लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन, जस्टिस, ये तीनों फंक्शंस, तीनों बॉडी किसी डिफरेंट बॉडीज द्वारा किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अदरवाइज अगर ये तीनों अप्लाई नहीं होते, एक ही बॉडी के द्वारा ये चीजें की जा रही है, ठीक है, सिंगल हैंडेडली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है वहां पे, तो वो ऑटोक्रेसी का एग्जांपल होगा। जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वहां पे किंग जोंग उन है, तो वो है ना, सारे अपने जैसे उनके मेन मेजर रोल पार्लियामेंट में भी है उनका, एजुकेशन में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है उनका, और जस्टिस भी, वो भी मतलब अपनी ही विल, यू नो, आपको पनिश कर सकते हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो उनका अलग, आप उनके खिलाफ नहीं कर सकते, कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते, केस वगैरह, ठीक है। तो सिंपल है। तो ऑटोक्रेसी का एग्जाम्पल है करंट, राइट। तो ये ऑटोक्रेसी हो गई, ठीक है। उसके बाद हाँ, सिंपल इंडिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, राइट, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो अपन इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं कि इंडिया में लॉ मेकिंग कौन करता है, लॉ एग्जीक्यूशन कौन करता है और जस्टिस कौन देता है, ठीक है। सिंपल है। लॉ मेकिंग मतलब कानून बनाना। तो कानून देखो, हमारे यहाँ पे तीन थ्री टियर गवर्नमेंट है, थ्री टियर गवर्नमेंट है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो, एक तो है सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, और एक डिस्ट्रिक्ट और या बोल सकते हैं लोकल लेवल पे, ठीक है। सिंपल से लोकल लेवल पे मानिए, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे अपना जैसे यूनियन लेवल जिसे भी बोलते हैं, केंद्र सरकार, जैसे केंद्र केंद्र के लेवल पे यूनियन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो है पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट है लॉ मेकिंग बॉडी में, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट। और होता है, एक होती है राज्यसभा, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, ठीक है, एक होती है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा इज अपर हाउस और लोकसभा इज लोअर हाउस। वैसे हाउस ऑफ एल्डर भी बोलते हैं इस राज्यसभा को, और लोकसभा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट हमारी वो क्या है, बेसिकली उसके तीन पार्ट्स हो गए, तीन ऑर्गन है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों हाउस है, ये अथॉरिटी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। देखो सिंपल, इसे प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्यों रखा, आपको याद ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी बिल होता है वो एक्ट बनने से पहले उसे राज्यसभा और लोकसभा से पास होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसे एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की कहती है असेंट चाहिए होती है, सिग्नेचर चाहिए होती है प्रेसिडेंट साहब के, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जैसे सिग्नेचर करते हैं, विदाउट प्रेसिडेंट सिग्नेचर ए बिल कांट टर्न इनटू एक्ट। तो उसको एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए ही होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई ही इज द पार्ट, ही और सी इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, सिंपल। उसके बाद यूनियन लेवल पे लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी कौन सी है, ठीक है, लॉ इंप्लीमेंट करने वाली, लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी है एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे पास, ठीक है। तो देखो एग्जीक्यूटिव में मैं पहले बोल चुका हूँ, ऊपर भी बताया था मैंने, जो प्रेसिडेंट साहब आते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है। उसके बाद पीएम आते हैं, पीएम के साथ उनके काउंसिल मिनिस्टर आती है, ठीक है। पीएम, जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके हेड होते हैं, ठीक है। और ऑफिसर्स भी होते हैं, जैसे मैंने बोला सेक्रेटरीज वगैरह, जॉइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑल द सेक्रेटरीज द पोस्ट, और द असिस्टेंट आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है, ये एजुकेटिव, देखो इसमें भी देखो आपको याद रखना है, ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जैसे ये जो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने ब्रिटेन से लिया, तरह से ब्रिटेन में वहां पे क्राउन होता है, ठीक है, किंग और क्वीन जो होती है वो हेड ऑफ द स्टेट होती है, सिंपल। हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, प्रेसिडेंट जो पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल, ठीक है, इज सिंबॉलिक, ही इज अ सिंबॉलिक हेड, राइट। तो सिंपल क्या होता है कि जो भी कोई भी काम यूनियन एग्जीक्यूटिव करती है, जैसे सपोज करो हमारे पार्लियामेंट कोई एक्ट लेके आई, ठीक है, सपोज करो डिजिटल एक्ट लेके आई, रिसेंटली लेके भी आई थी, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो कौन बनाएगा, वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव बनाएंगे ना, ऑब्वियस है। तो वो किसके नाम पे बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे प्रेसिडेंट के नाम पे। तो ऑल द एक्शंस ऑफ द यूनियन विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई ही इज द पार्ट, यू नो, ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सेकंड है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, आपको बताना चाहिए ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। एंड अल्टीमेट द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है, Indian democratic system is the prime minister only, right? Though in the papers it is not yet the case, but yeah, in the real authority, the most powerful authority in Indian democratic system, that is prime minister only, right? उसके बाद उनकी काउंसिल मिनिस्टर होती हैं, जो भी देखो काउंसिल मिनिस्टर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं मिनिस्टर्स के, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, ठीक है, जो भी होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं,
तो उनकी अलग होती है, ठीक है। और उसके बाद ऑफिसर्स होते हैं, मैंने पहले बता दिया, ठीक है, जो आईएएस वगैरह होते हैं। उसके बाद सेंट्रल लेवल पे जो जस्टिस देने का काम करती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। होने पर सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो जस्टिस देती है, और इन्हें क्या बोलते हैं, आपका जो होती है गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ये जस्टिस देती है, अगर कोई एक्ट वगैरह में कुछ सपोज करो कि सिटीजन के एक को लेके आया और सिटीजन उससे कुछ नहीं है, उनको लगता है कि उनके बेसिक राइट्स, ह्यूमन जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह उसका वायलेशन हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सिंपल है। ये कोई स्टेट भी जा सकता है, सिंपल है, कोई भी जा सकता है, कुछ ओवर इंटरेस्ट है वहां पे किसी का भी, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल पे हम बात करेंगे। स्टेट लेवल पे देखो लॉ मेकिंग की जो लॉ मेकिंग होती है वो कौन करता है, वो आपका करता है स्टेट लेजिस्लेचर रहती है लॉ मेकिंग, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के देखो तीन पार्ट्स होते हैं, इनके भी गवर्नर होता है, गवर्नर होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। देखो मैंने ऊपर ही बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, सब स्टेट्स में नहीं होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल करंटली 6 स्टेट्स में ओनली, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, गुजरात, सॉरी यूपी, बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स हैं, उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है करंटली इंडिया में। जबकि अदर जो स्टेट्स हैं उनमें क्या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं ना होना आपको, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, ये बिगिनर्स के लिए एडवांस, उनको जो पहले पढ़े उनको आइडिया है इस चीज के बारे में, ऑब्वियस, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी होती है उसे इसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करती। तो गवर्नर, देखो गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे लेजिस्लेटिव के पार्ट होते हैं, ये स्टेट के लॉ बनाते हैं। उसके बाद इस इन लॉ को अप्लाई कौन करता है, इंप्लीमेंट करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके पार्ट होते हैं गवर्नर, ठीक है, उस गवर्नर होते हैं और एक होते हैं सीएम और काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर जो स्टेट लेवल पे होते हैं उसको भी हेड चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और ऑफिसर्स, ऑफिसर्स यहाँ पे तो मोस्टली आईएएस ऑफिसर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स यहाँ पे दो होंगे, तो आईएएस ऑफिसर्स भी होंगे प्लस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अपन यूपी में, तो यूपी का अगर यूपी लेवल पे जो भी ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, यूपीपीएससी जो सिलेक्शन करेगी, या अपन राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे आरएस वगैरह होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आरपीसी सेलेक्ट करती है, सिंपल। तो ये चीजें होती है, आपको याद रखना है, यहाँ पे आईएएस और पीसीएस दोनों ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। और पार्ट पता चल गया होगा आपको कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। देखो आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ नोट करना है कि प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल इज पार्ट ऑफ बोथ लॉ मेकिंग एंड लो लो एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव का दोनों का पार्ट है, पार्लियामेंट की भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव की पार्ट है। और एट द स्टेट लेवल गवर्नर इज पार्ट ऑफ बोथ स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सिंपल। और अब स्टेट लेवल पे आपको जो भी होगा जस्टिस कौन देगा, हाई कोर्ट देगी, ठीक है, सिंपल। और जिसके भी जुडिक्शन में आएगा हाई कोर्ट, जिस भी एरिया में आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन बात कर सकते हैं, ये बेसिकली लोकल लेवल की तरह से, ठीक है। अब देखो जैसे 30 गवर्नमेंट है, देखो यहाँ पे है ना, लॉ बनाने का दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो होता है पंचायत के दो पार्ट्स, देखो एक तो सिटीज के लिए होता है, ठीक है, एक होता है विलेज लेवल, अर्बन एरिया के लिए होता है, रूरल एरिया के लिए, ठीक है। तो पंचायती राज रूरल एरिया के लिए होती है, जबकि अर्बन एरिया के लिए होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये 73rd काउंसिल अमेंडमेंट से लाए गए, ये 74th काउंसिल अमेंडमेंट से लाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पंचायती राज में 3 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे ग्राम सभा, पंचायत, सॉरी, ठीक है, ग्राम पंचायत, ओके, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल होता है, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो यहाँ पे तीन ये लोग बनाते हैं लोकल लेवल पे, तीनों तीनों ये दोनों बॉडीज की तीन यहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन के बेस में उनकी अलग अलग बॉडीज होती है, ठीक है। और लोकल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो होते हैं क्या, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, मतलब वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जिसकी प्रिपेयर हम कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो जिसे उनको डीएम बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, सिंपल। और जो भी इनको जस्टिस लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जस्टिस कौन देता है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इनको जस्टिस देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि पंचायती राज वगैरह जो ये लोकल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है लॉ मेकिंग वो कैसे होती है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको रूरल एरिया में, देखो डिस्ट्रिक्ट दो मैंने बोला दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक तो रूरल एरिया, एक होता है अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में अपन देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो सबसे पहले विलेज लेवल पे होती है, विलेज लेवल पे क्या होती है, विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज के लिए होती है ग्राम पंचायत होती है। फिर होती है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रूरल एरिया में क्या होती है, जिला पंचायत होती है, जिला परिषद होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में देखो क्या होती है, टाउन लेवल पे क्या होती है, नगर पंचायत होती है, जिसे अपन म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी आप बोल सकते हो इसको। और सिटी लेवल, सिटी ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो, ठीक है, तो वहां पे होती है म्युनिसिपल काउंसिल होती है, ठीक है, क्या होती है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है। और ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो वो होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे
बड़ी सिटीज है जैसे सिटी, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, तो वहाँ पे क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक है, उनके इलेक्शन वगैरह भी होते रहते हैं, आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में ऑब्वियसली। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपको चार्ट, अगर आपको ये मतलब ये साइकिल समझ में आ गया तो मतलब काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर डाउट्स काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखो सिंपल क्या है, देखो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अल्टीमेट जो पावर होती है, अल्टीमेट जो पावर, ठीक है, वो होती है किसके हाथ में होती है, वो होती है लोगों के हाथ में। किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में। पब्लिक पब्लिक है वो होती है मतलब वो मेजर रोल, मतलब वो मेजर होती है, ठीक है। तो वो वोट देती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है अपनी चॉइस से, ठीक है, सिंपल। उसी के बेस पे चीजें आगे बढ़ती है। तो अब क्या होगा, अल्टीमेट पावर इनके पास, पब्लिक के पास। तो पब्लिक क्या करेगी, लोकसभा हमारे पास लोअर हाउस है, ठीक है, जिसकी कितनी सीटें हैं, 543, ठीक है। पहले तो 545 थी 2022 तक, जिसमें से दो जो एंग्लो इंडियंस है वो दे आर बीइंग नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट करंटली क्या उनको अब प्रोविजन हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब क्या है कि करंटली हमारे पास कितनी सीटें हैं, 543 सीट्स हैं। तो उनके लिए पब्लिक क्या करती है, वोट डालती है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या होता है, इस पब्लिक ने वोट डाला इन सभी सीटों के लिए, इसमें जिसने भी लोकसभा में मेजोरिटी हासिल कर ली, ठीक है, इन 543 सीट्स में जिसने मेजोरिटी हासिल की, वो क्या बनेगा, उस पार्टी का जो, जिस पार्टी ने पार्टी ऑफ द कोalition जिसने भी की, उसका जो लीडर होगा वो क्या बनेगा, पीएम बनेगा। तो वो अपनी चॉइस से अपने मिनिस्टर्स को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, सिंपल। आपको याद रखना है। उसके बाद वो क्या करेंगे, जो पीएम और काउंसिल मिनिस्टर होंगे अपनी चॉइस के मतलब ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे वेरियस डिपार्टमेंट्स वगैरह में, ठीक है, आपको याद ये रखना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपनी चॉइस से ऑफिस, जो भी ऑफिसर्स वगैरह सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब ऑफिसर्स क्या करेंगे, ऑफिस देखो इनका काम, देखो पीएम वगैरह जो काउंसिल मिनिस्टर है उनका काम करेंगे, ऑफिसर्स वगैरह करेंगे। अब ऑफिसर्स अपना काम किससे करवाएंगे, एम्प्लॉय वगैरह से काम करवाएंगे, ठीक है, उनके एम्प्लॉय होते हैं नीचे लगे हुए, ठीक है, उनसे अपना काम करवाएंगे, सिंपल। तो अब क्या होगा, ये चलेगा। और ये एम्प्लॉयज क्या करेंगे, ये सर्विस देंगे लोगों को। जैसे सपोज करो आपकी अगर इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी आती है सपोज, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं। तो अल्टीमेट ये हमें ये दे रहे हैं, ठीक है, बट उनके ऊपर क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज और जो ऑफिसर्स इनको बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो हाँ, अब आपको ये साइकिल समझ आ जाना चाहिए, पब्लिक इज अल्टीमेट, अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई डेफिनेशन क्या बोला है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन, ये लोकतंत्र, इट्स डेमोक्रेसी, राइट। तो पब्लिक वोट डालेगी 5 साल के लिए सीट्स में, कितनी 543 सीट्स में, इन सीट्स में जो मेजोरिटी हासिल करेगा वो पीएम और काउंसिल मिनिस्टर बनाएगा। पीएम और काउंसिल मिनिस्टर अपनी चॉइस से ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, ऑफिसर्स अपना काम किससे करेंगे, एम्प्लॉय से करवाएंगे, जो अल्टीमेट सर्विस पब्लिक को देंगे। अगर उनको चॉइस ये सर्विस अच्छी लगी तो ये फिर से इसी पार्टी को वोट देंगे या उसी कैंडिडेट को वोट देंगे। अगर इनको अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये अपनी डिफरेंट चॉइस से वोट देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक साइकिल है, आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे अपन पता ही होगा कि जो अपन यूपीएससी वगैरह जो सिविल सर्वेंट्स उनको बोलते सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो सिविल सिविल में पब्लिक, पब्लिक क्या करें, सर्विस देंगे पब्लिक को, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो लोग को सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सिंपल। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली, वो चैप्टर 2, ठीक है। तो उसमें देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, सेंटर जो लेवल पे होती है, ये कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें बहुत बेसिक आइडिया आपको इसमें रखना है कि देखो सेंट्रल जो गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्गन होते हैं जिससे बोलते हैं, फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, सेकंड होता है लेजिस्लेचर, थर्ड होता है आपका जुडिशरी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए। एग्जीक्यूटिव में आपको बताना चाहिए दो, लाइक एक तो होते हैं प्रेसिडेंट साहब, जिसे हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। एक होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम, ठीक है। और पीएम के अंडर होती है उनकी काउंसिल मिनिस्टर, मतलब बिजनेस करने के लिए जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनको संभालने की काउंसिल मिनिस्टर होती है। अब देखो क्या हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं प्रेसिडेंट, सेरेमोनियल हेड होते हैं, मतलब इंडिया के हेड कौन है, इंडिया के प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है। बट ये क्या है, नॉमिनल हेड, एक्चुअली ये नाम मात्र हेड है, ये सिंबॉलिक हेड है, नॉमिनल हेड है, ठीक है। इन्हें डिजूरे अथॉरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट साहब किसको, जो पीएम वगैरह होते हैं, अगर अभी करंटली इलेक्शन हुए थे, ठीक है, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने वो क्या ली थी, उन्होंने जो ओथ ली थी, तो ओथ आपको अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी तो आपको पता होगा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट है जो, ठीक है, उन्होंने क्या दिलाई थी, उनको दिलाई थी पीएम और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, जो भी सारे मिनिस्टर्स उनको दिलाई। तो ओथ आपको याद रखना कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट साहब दिलाएंगे, ठीक है, सिंपल। अब आपको देखो रियल ये याद करना है, प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल मिनिस्टर वो होते हैं क्या होते हैं, रियल होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो क्या होते हैं, रियल हेड होते हैं, ठीक है।
और ऑफिसर्स वगैरह उनको असिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली मैंने फिर बताया कि जैसे आईएएस वगैरह सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं उनके काम में, सिंपल। उसके बाद देखो लेजिस्लेचर में, देखो हमने ऊपर पढ़ा भी है कि लेजिस्लेचर के तीन पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट साहब होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा अपर हाउस, एक होता है लोकसभा जिसे लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पब्लिक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पब्लिक है, सिंपल। अब पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक लोकसभा में वोट डालेगी, ठीक है, पब्लिक लोकसभा में क्या करेगी, 5 साल के लिए वोट डालेगी, सिंपल, राइट। और इस 543 सीट्स में जो भी मेजोरिटी सीट्स जीत जाएगा, जो भी पार्टी ऑफ द कोलिशन, कोलिशन की जो होगी, कोलिशन जो भी मेजोरिटी सीट हासिल करेगा वो क्या बनेगा, पीएम बन जाएगा, ठीक है, समझ, अब समझ आ गया आपको। और पीएम अपनी चॉइस के ये रियल हेड होते हैं पीएम, और पीएम को वोट कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट साहब दिलाएंगे, ठीक है। तो अब ये बेसिक आइडिया हो गया। तो 5 साल के लिए पब्लिक वोट करेगी, लाइक वोट करेगी, और 5 साल के लिए लोग रहेंगे ऑफिस में, ठीक है। लोकसभा में जो मेजोरिटी हासिल करेगा वो पीएम और काउंसिल मिनिस्टर बनाएगा अपनी, और प्रेसिडेंट साहब उनको दिलाएंगे, ठीक है। ये बेसिक आइडिया आपको हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जुडिशरी में देखो, जुडिशरी हमारे पास इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड मतलब डिफरेंट नहीं, उनका जुडिक्शन जैसे ही है, ठीक है। एक जुडिक्शन इन द सेंस कि ये सारे यूनियन और स्टेट लॉ सारे अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हेड जो टॉप मोस्ट जो इंडिया की कोर्ट है, जो टॉप कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद है हाई कोर्ट्स, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स अलग-अलग स्टेट्स में नाम होती है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, सिंपल। हाँ, सही, आपको याद बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है। अब अगर आप सेंट्रल लेवल पे आपको ये आइडिया हो गया, तो स्टेट लेवल पे बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्टेट लेवल पे स्टेट एग्जीक्यूटिव हो जाएगी, स्टेट लेवल पे लॉ मेकिंग कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, और जस्टिस कौन देगा, जुडिशरी देगी, ठीक है। अब क्या बताएगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा कोई, ऑब्वियसली होगा। उस स्टेट का हेड कौन होगा, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हमारे सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे भी देखो ये प्रेसिडेंट साहब है, वो हेड ऑफ स्टेट है। बट यहाँ पे स्टेट का मीनिंग अलग है, ठीक है। ये पॉलिटिकल उसको सिंबल बोलते हैं स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब इंडिया है, ठीक है, इंडिया पूरा नेशन है। इस स्टेट का मतलब क्या है, इंडिया पूरा नेशन है। जबकि ये जो नीचे वाला स्टेट है, जिसके गवर्नर साहब हेड होंगे, वो स्टेट है छोटा स्टेट, मतलब जैसे पंजाब हरियाणा, ये स्टेट है। जबकि ऊपर वाला स्टेट क्या, जिसे पॉलिटिकल टर्म्स में बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं कंट्री को, ठीक है। जैसे यूएसए स्टेट है, ठीक है, वैसे। तो यहाँ पे जो स्टेट है, छोटा वाला स्टेट, जैसे मतलब ये होते हैं हमारे जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेट हो गया, पॉलिटिकल टर्म यूजफुल, टेक्निकल टर्म होता है स्टेट, ठीक है। तो सिंपल है। तो ये स्टेट कंसर्न जैसे राजस्थान है या पंजाब हरियाणा जो भी है, ठीक है, उनके जो हेड होंगे वो उनके रिस्पेक्टिव गवर्नर्स होंगे, ठीक है। और इनको नॉमिनल हेड बोलते हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वैसे ही नॉमिनल स्टेट लेवल पे नॉमिनल हेड होते हैं। उसके बाद एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट के हेड होते हैं, वो होते हैं सीएम, ठीक है। और उनके अंडर होती है काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, सिंपल। और ये जो रियल हेड होते हैं, ठीक है, जो सीएम वगैरह होते हैं, सीएम होते हैं वो क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, रियल हेड होते हैं। और देखो सिंपल। उसके बाद देखो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको पता होना चाहिए कि 3 पार्ट होते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया है। स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर साहब होते हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, सब में नहीं होती है, 6 स्टेट्स में अभी करंटली, और एक होती है लेजिस्लेशन जो सब लाइक सभी स्टेट्स में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या सिंपल, यहाँ पे आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या पब्लिक है, ठीक है, ये पब्लिक है यहाँ पे, राइट। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक करेगी वोट, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक वोट करेगी, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, कैंडिडेट्स, उनको वोट करेगी, कितने से 5 साल के लिए वोट करेगी, ठीक है। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स होंगी, देखो डिफरेंट स्टेट्स में सीट्स की नंबर डिफरेंट होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इस टोटल असेंबली जिसने मेजोरिटी हासिल की वो अपना सीएम बनाएगा, वो क्या बनाएंगे, सीएम बनाएंगे अपना, काउंसिल मिनिस्टर बनाएंगे। और इनको कौन दिलाएंगे, अब आपको पता होना चाहिए, इनको दिलाएंगे आपके गवर्नर साहब दिलाएंगे, ठीक है, सिंपल। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें भी। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो जुडिशरी में डिस्कस कर लिया, आपको आइडिया हो भी गया होगा। स्टेट लेवल पे देखो जुडिशरी हाई कोर्ट वगैरह होती है, और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह होती है, ठीक है। तो हाँ, अब देखो इन सीएम, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आईएएस वगैरह होते हैं स्टेट लेवल पे, और पीसीस जो होते हैं, सिंपल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने स्टेट लेवल पे समझ लिया तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन लेवल पे हमने सेंट्रल लेवल पे समझ लिया, स्टेट लेवल पे समझ लिया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझना इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी, हमने पढ़ भी रखा है। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 3 चीजें होंगी, एक एग्जीक्यूटिव होगा, एक होता है लेजिस्लेचर होगा, एक होता है जुडिशरी होगी, ठीक है, ऑब्वियसली होगा। जुडिशरी पहले पढ़ते हैं, बीजी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों होंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और वैसे भी आप इवन आप सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वोलेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप फर्स्ट इंस्टेंस में भी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे इसको। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव को, जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड होते हैं, डीएम वगैरह होते हैं, डीएम होते हैं, मतलब डीसी और डीएम जी से, मतलब, ठीक है। तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लेजिस्लेचर होती है, वो होती है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक्चुअली, दो
दो एरिया की लाइव होती है, रूरल एरिया के लिए डिफरेंट होती है, अर्बन एरिया के लिए डिफरेंट होती है। तो देखो रूरल एरिया के लिए पंचायत होती है, पंचायती राज जिसे बोलते हैं, ठीक है। और अर्बन लेवल पे क्या होती है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सिंपल। देखो पंचायत देखो देखो सबसे पहले होती है आपकी ग्राम पंचायत, ये मैंने गलत टाइप कर दिया, सॉरी, ये नहीं है, यहाँ पे होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत होगा, ठीक है, ग्राम सभा विलेज लेवल पे होती है, यहाँ पे होगा क्या होगा, देखो सिंपल है, ठीक है, मतलब एक मिनट, ये मैंने गलत टाइप कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आपको याद रखना है कि सबसे पहले विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज के लेवल पे क्या होती है, आपकी होती है विलेज पंचायत होती है, ठीक, ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ठीक है। अब उसके बाद म्युनिसिपल गवर्नमेंट, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है सिस्टम, सिटी लेवल, जो स्मॉल सिटीज होती हैं, जो छोटे छोटे टाउन होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है नगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी जिसे नॉर्मली बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। उसके बाद अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, ठीक है, ठीक है, जैसे किसी पॉपुलेशन सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख हो गई, 7 लाख हो गई, कितनी भी हो गई, बट 10 लाख से कम हो गई, तो वो सिटी किसके अंडर, कौन सी बॉडी के अंडर आएगा, म्युनिसिपल काउंसिल वहां पे होगी। और जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जैसे अभी बॉम्बे वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिटी पॉपुलेशन क्या होगी, 10 लाख से ज्यादा हुई, तो वहां पे क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होगा, वहां पे बॉडी होगी लॉ मेकिंग की, ठीक है। अब देखो जिस लेवल पे हमने लॉ मेकिंग बॉडी देख ली, रूरल एरिया के लिए लगभग अर्बन एरिया के लिए डिफरेंट होती है। अब आपको क्या याद रखना है, जुडिशरी हमने पता ही है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, सुप्रीम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। एग्जीक्यूटिव का सिंपल क्या है, मतलब एग्जीक्यूटिव हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि इसके लिए हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो इनको तो डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर। तो देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है वो होती है डीएम होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो देखो कौन होते हैं, डीएम होते हैं, या जिन्हें कलेक्टर बोलते हैं, मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो देखो आपको याद ही रखना है कि जो जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, वो पोस्ट लेके आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, कौन लाए थे, ये गवर्नर थे एक्चुअली में बंगाल के, तो ये लाए थे ब्रिटिश टाइम पे 1772 में लाए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट, क्योंकि देखो प्रिपेयर करें यूपीएससी के लिए, ठीक है, आईएएस वगैरह के लिए, आईएएस के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए आईएएस आईपीएस के लिए, तो ये पोस्ट कहाँ से आई है, ठीक है, किसने लेके आए, कब पोस्ट आई है, तो 1772 में क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स ये पोस्ट लेके आए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। बेसिकली ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे उस टाइम पे, उनका जो पोस्ट का मतलब कलेक्टर, मतलब कलेक्ट करने वाला, समवन हु कलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू मिलता है उसको कलेक्ट करना, वो इस पोस्ट बनाया। उसके बाद देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है वो बने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट होती है वो बनाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, सिंपल। वो कब बनाई थी, 1787 में बनाई, ठीक है, एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, तो उन्होंने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट बनाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1787 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब दंडाधिकारी, दंड अधिकारी का मतलब जो दंड देता है, जो पनिश करता है लोगों को। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो उस टाइम पे अगर कुछ किस सपोज करो रेवेन्यू है, ये तो कलेक्टर साहब है, तो कलेक्टर साहब मतलब कहीं पे रेवेन्यू लेने के लिए किसी किसान के पास, किसी जिसके पास भी जो जिसको रेवेन्यू देना होता है ऑब्वियसली, ठीक है, बट उसने देने से मना कर दिया। अब अगर उनके पास कोई पावर नहीं हुई तो उसको कैसे पनिश करेंगे इस चीज के लिए, तो अब जिसने मजिस्ट्रेट उनको पोस्ट पावर दे दी कि आप उनको पनिश भी कर सकते हो, जो भी इसके इन्फोर्स जो काम कानून को नहीं मानते हैं, जो अपना जो उनकी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको पनिश भी कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद देखो हाँ, अब आपको ये बात याद रखनी है, पता होनी चाहिए कि देखो डिस्ट्रिक्ट अभी करंटली इंडिया में देखो, ये तो क्या था, ब्रिटिश टाइम की बात थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह सब एक ही होते थे, ठीक है। तो अभी क्या होता है करंटली इंडिया में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में कलेक्टर जो आईएएस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कुछ स्टेट्स में उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, और कुछ स्टेट्स में उनको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंड अधिकारी, जो दंड देने वाला हो, द ऑफिसर हु गिव्स हु पनिशेस, ठीक है। तो अब क्या उनको देखो बोलते हैं, अभी यूपी में उनको देखो डीएम बोलते हैं, जैसे सपोज लखनऊ के डीएम है, ठीक है, कानपुर के डीएम है, ठीक है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट यूपी उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तराखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, जैसे कलकत्ता के डीएम है, तो ऐसे, ठीक है। कलेक्टर में कौन कैसे कैसे मतलब कौन कौन कलेक्टर बोलते हैं, एक तो राजस्थान हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, जैसे ग्वालियर के कलेक्टर होंगे, ठीक है, राजस्थान के जयपुर के कलेक्टर होंगे, या जैसलमेर के कलेक्टर होंगे, झारखंड के कलेक्टर होंगे, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर होंगे, बिहार के जैसे पटना वगैरह हो गए वहाँ के कलेक्टर। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, आज भी पंजाब वगैरह, पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, वहाँ पे उसको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उनको बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। और इनका देखो इनको डीएम बोलते हैं, इनको डीसी बोलते हैं, इनको भी डीसी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आपको एक बेसिक आइडिया और मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे, अब बहुत काइंड आप सुनते होंगे कंफ्यूजन बीएम, तो आपको नहीं पता होगा इतना कि भाई इनका मतलब मीनिंग क्या होता है, कि भाई इस टीम का भी हमने सुना है, ये क्या होता है एक्चुअली पटवारी वगैरह, ठीक है। तो अपन इसका अपन बेसिक आइडिया लेंगे इनके बारे में आज। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनियन जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है
एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? डीएम, डीसी, डिप्टी कमिश्नर। हमने देखा कि अलग अलग स्टेट्स में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, उस पोस्ट को। अब देखो डीएम, डीएम साहब है, उनको असिस्ट करने के लिए क्या होंगे? डीएम होंगे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। डीएम साहब को असिस्टेंट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। उनके काम होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उनको पूरी डिस्ट्रिक्ट को देखना होता है, उनके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए, ठीक है, वो क्या करेंगे? अपने पास उनके पास क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट वो होते क्या? एडीएम होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो उनके पास असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही डिप्टी कमिश्नर है तो उनके पास असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका वर्क को काफी ज्यादा कम कर देंगे, सिंपल। उसके बाद देखो डिस्ट्रिक्ट को कई डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, तो जो भी उनको सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कोई पटना है, उसको पटना को मान सपोज करो 10 सब डिवीजन डिवाइड कर दिया, तो सब डिवीजन के लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? एसडीएम साहब होते हैं, एसडीएम होते हैं, ठीक है, ठीक है, और एसडीओ, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो सब डिवीजन को भी कई तहसील में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और तहसील के लेवल पे हेड कौन होता है? तहसीलदार होता है, ठीक है, और एक तहसीलदार के पास बहुत सारा काम होता है, तो पूरा तहसील का होता है, तो इनको असिस्ट करने के लिए नायब तहसीलदार अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, सिंपल। उसके बाद तहसील को कई सर्किल्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और सर्किल के लेवल पे जो काम करते हैं वो करते हैं, हेड होते हैं, वो होते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, जिससे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में पटवारी बोलते हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं वो हेड होते हैं। विलेज के लेवल पे कुनुंगो, ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम्स, डीएमडीसी या डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए एडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं। सब डिवीजन के लेवल पे एसडीएम हेड होते हैं, उसके उनके बाद तहसील, तहसील जो होते हैं उनके तहसीलदार हेड होते हैं, तहसीलदार को असिस्ट करने के लिए नायब तहसीलदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्किल है, तहसील को कई सर्किल्स में डिवाइड किया जाता है, तो सर्किल क्या होता है? उनमें हेड होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, विलेज लेवल पे होता है कुनुंगो, ठीक है। अब देखो हम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है उनके उनके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो, ठीक है। तो देखो अब देखो उनका मैं इसलिए बोला क्योंकि देखो सिंपल है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट हो रहा है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, सिंपल। देखो देखो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स इन द सेंस देखो पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कौन होंगे? हेड होंगे एसपी होंगे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। बट वैसे ही मेडिकल जो होता है, मेडिकल जो सेक्टर होता है, फील्ड होती है, उसमें हेड कौन होंगे? मेडिकल के होंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे। उसी प्रकार जेल, जेल जो होती है, जेल डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो होते हैं वो होते हैं, हेड होते हैं। उसी प्रकार एजुकेशन में बीएसए जो होते हैं ऑफिसर वो होते हैं हेड। उसके बाद फॉरेस्ट में क्या होते हैं? फॉरेस्ट ऑफिसर हेड होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। डेवलपमेंट जो होता है सेक्टर, उसमें डेवलपमेंट के उसमें क्या होते हैं? सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनमें से कोई एक, ठीक है। उसके बाद देखो 3 डिपार्टमेंट और होते हैं, जैसे होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक होते हैं, इनको मैं येलो से कर लेता हूँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एक होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगेन, और उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आपको देखो ये आइडिया होना चाहिए इनका, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी, तो आपको बेसिक आइडिया ना होना चाहिए, ठीक है। देखो पुलिस लेवल पे हेड एसपी हो गए, बट अल्टीमेट हेड कौन होंगे? तो पुलिस डिपार्टमेंट होगी, बट अल्टीमेट रिपोर्ट किसको मिलेगी? डीएम को मिलेगी, ठीक है। तो डीएम रिस्पॉन्सिबल होंगे पुलिस के लिए भी, मतलब ठीक है। मेडिकल के लिए मेडिकल हेड कौन सेम होते हैं, बट वो रिपोर्ट किस में? डीएम को करते हैं। जेल के हेड कौन होते हैं? सुप्रीटेंडेंट जेल, रिपोर्ट किसको करते हैं? इनडायरेक्ट, मतलब इन सब के डिपार्टमेंट्स के इनडायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है? डीएम के पास। उसके बाद देखो ये जो 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इनका डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास होता है? इनका डायरेक्ट हेड कौन होते हैं? डीएम होते हैं, ठीक है, सिंपल। तो इन तीनों डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है डीएम का, ठीक है, सिंपल। अब अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो आपकी मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी दूर हो जाएंगी, मतलब ठीक है। तो अपन इसको समझते हैं अच्छे से, इस डायग्राम, ठीक है। देखो हमने पहले देखा कि क्या होता है, सेंट्रल लेवल होता है, एक तो स्टेट लेवल होता है, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 टीयर का सिस्टम हमारे यहाँ पे इंडिया में। देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट अगर पीएम अगर होंगे वो क्या होंगे? यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, सॉरी एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और राज्यसभा लोकसभा क्या है? वो क्या होंगी? वो यूनियन लेजिस्लेचर के पार्ट है, अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट, ठीक है। और वही स्टेट में गवर्नर, सीएम और टर्म्स लिमिट्स होगी उनकी, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, सिंपल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन होगा? देखो डीएम, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार, ठीक है। और वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत, तो दो रूरल एरिया के लिए पंचायत होगी और अर्बन एरिया पे लोकल बॉडीज होंगी। अब देखो अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पब्लिक है, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिया डेमोक्रेसी। अभी आप इसको चार्ट से पता चल जाएगा आपको कि इंडिया को डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं। देखो यूनियन सेंट्रल लेवल पे देखो पब्लिक क्या करेगी? वोट करेगी 5 साल के लिए। किससे वोट करेगी? लोकसभा,
लोकसभा में जो सीट्स उनको वोट करेगी। अब इस लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी आएगी, लोकसभा में जिसके पास 543 सीट्स में जिसके पास मेजोरिटी आएगी, वो क्या बनेगा, उस पार्टी का जो कोalition का जो लीडर होगा वो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और प्राइम मिनिस्टर को और कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट साहब दिलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के असिस्ट करने के लिए, उनकी डिपार्टमेंट को संभालने के लिए मिनिस्ट्री संभालने काउंसिल मिनिस्टर होती है, जिसके पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद स्टेट लेवल पे क्या होगा, पब्लिक है, यहाँ पे हम वोटर्स हैं, सारे सिटीजन से सारे वोटर्स हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट करेंगे स्टेट लेवल पे। ठीक है, 5 ईयर के लिए करेंगे। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली हमने वोट किया, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस जिस कैंडिडेट ने या जिस पार्टी ने या जिस कोलिशन ने मेजोरिटी हासिल की है, उसका लीडर क्या बनेगा, सीएम बनेगा। और सीएम की चॉइस से काउंसिल मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, ठीक है। और अब गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब क्या करेंगे, सीएम को और काउंसिल मिनिस्टर को क्या करेंगे, वो दिलाएंगे। ठीक है, और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, हम पब्लिक है, ठीक है, वोटर्स हैं, हम क्या करेंगे, जैसे सपोज आप अगर पंचायत में आते हो या रूरल एरिया में आते हो, तो आपको पंचायत सारी जो बॉडीज हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत, ये बॉडीज आ जाएंगे। अर्बन लोकल अर्बन सिटी वगैरह में रहते हो तो आप म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन तीनों में से किसी बॉडी के अंदर आओगे। तो किसी भी एरिया के अंदर आओगे तो उसमें एक बॉडी होगी आपकी। ठीक है, किसी भी एरिया में, जैसे आप अगर रूरल एरिया में तो कोई तीनों में से कोई बॉडी हो जाएगी, उसके लिए 5 साल के लिए वोट करोगे, सिंपल। और आप सिटी वगैरह में रहते हो तो किसी एक में आ जाओगे, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल में आ जाओगे, उसके लिए भी आप 5 साल के लिए हम वोट करेंगे। ठीक है, सिंपल। अब क्या होगा, अब देखो, अब डीएम क्या होंगे, सीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह को, डीसीए कलेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सिंपल, इनको अपॉइंट करते रहते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो ये उनका मेजर, देखो पता चल गया आपको, ये अगर चार्ट अगर आपको आइडिया हो गया, पब्लिक है मेन मेन यहाँ पे थीम, ये पब्लिक बना रही है सबको, देखो थीम भी पब्लिक बना रही है। ठीक है, सिंपल, सीएम भी पब्लिक बना रही है, उस टीम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम वगैरह को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली है, 1 मिनट। ओके, आई थिंक टुडे देखो एक्चुअल चैप्टर तो काफी है, बट आई थिंक अब उसको अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है, कल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल था, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, टेक केयर, बाय बाय।